حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ اور امید ہے کہ ابھی تک الحمدللہ آپ لوگ یاد کر چکے ہوں گے بہت سارا حصہ، کیونکہ ہماری آدھی بک ہو چکی الحمدللہ۔ ہاف ہمارا سلیبس ختم ہو گیا، تو اسی کو میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم باقی کے ہاف پڑھیں، اس سے پہلے ہم یہ جو ہاف ہے اس میں سے ابھی تک کلاس میں جو ہے جب تک سب لوگ یاد نہیں کر لیے، تو آج میں کوشش کروں گا کہ یہ ہاف سلیبس آپ کو یاد دلاؤں۔ تو ابھی میں نیا سبق آج بھی شروع نہیں کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ سبق میں کچھ چیزیں اور بھی بتانی باقی ہے تو وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، ساتھ میں کچھ یاد کروانا باقی ہے تو وہ بھی یاد کرواؤں گا۔ تو اس طریقے سے جو چھوٹا ہوا جو چیزیں، بہت ساری چیزیں بھی بتانا باقی ہے انشاءاللہ اس میں سے، تو ہم مراجعہ بھی ہو جائے گا، ریویژن بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک تیر دو نشانہ جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہمارا مراجعہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اور یاد بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، اور جو بچے پوائنٹس ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم حدیث یاد کریں گے انشاءاللہ۔ 10 احادیث ابھی تک ہوئے ہیں، کوئی آگے بڑھے، ایک حدیث کو 5 مرتبہ پڑھیں تاکہ سب کو یاد ہو جائے انشاءاللہ، جو اگر ابھی تک یاد نہیں کیے۔ قال، ایسا پڑھنا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ Actions will be judged only by intention۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ جی، اور ذرا فاسٹ بولیے تاکہ 5 ٹائم ہو سکے۔ جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ ترجمہ بھی 5 بار پڑھنا ہے یا خالی عربی میں؟ خالی عربی پڑھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ قال رسول اللہ 5 صلی ہو گیا۔ اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ چلیے، مجلس میں کوئی ایسے ہیں جن کو ابھی تک یاد نہیں تھی، ابھی یہ 5 مرتبہ پڑھنے سے یاد ہو گئی، تو وہ ذرا ایک مرتبہ ٹرائی کرے۔ کوئی ہے ایسے جن کو ابھی یاد ہوئی ہے یا سب کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے تو پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کسی کو یاد نہیں ہے یا کسی کو یاد؟ سب کو یاد ہے۔ چلیے دوسری حدیث۔ شیخ یاد ہے الحمدللہ۔ سب کو یاد ہے الحمدللہ۔ حدیث نمبر 2۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین اذ نصیحہ، یعنی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان کے بارے میں آپ اچھا مشورہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کا دفاع کریں، آپ کا ڈیفنس کرے، آپ کی باتوں کو مانیں، آپ کے احکامات کو بجا لائیں اور آپ کے نافرمانیوں سے بچے۔ اللہ کے ساتھ نصیحہ یعنی خالص طور سے اللہ کی اطاعت کرنا، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اسما، نام اور اللہ کے کام اور ساری عبادات کی جتنی قسمیں ہیں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ سارے حقوق اللہ کے حوالے کرنا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ خالص طریقے سے خیر خواہی، یعنی ہمیشہ آپ خیر میں نظر آنا، شر میں نظر نہیں آنا۔ اگر آپ کہیں پر پلاننگ ہو رہی ہے کسی کو مارنے کی، تو آپ بولنا ہے کہ بھئی نہیں،
میں ایک مسلمان کے لیے خیر خواہی کے لیے جیتا ہوں. میں کسی کی کو قتل کرنے کی سازش میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. وہاں سے نکل جائے. اگر کہیں غیبت ہو رہی ہے, کسی کا مذاق اڑا رہے, تو آپ وہاں سے نکل جاتے. نہیں بھائی, میں خیر میں ساتھ دے سکتا ہوں. آپ کا میں دوست ہوں, آپ کا میں رشتہ دار ہوں. میں صرف خیر میں ساتھ دے سکتا ہوں, میں شر میں ساتھ نہیں دے سکتا. اگر کوئی بولیں گے چلو 10 لوگوں کا مذاق اڑا رہے, 5 لوگوں کا مذاق یا 1 کا, پوری مجلس بیٹھی ہوئی ہے, اگر آپ نکل جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں صرف خیر میں نظر آؤں گا, بھائی مجھے معاف کرنا, میں شر میں نظر نہیں آؤں گا. ایسی دوستی کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں. تو ایسے تعلقات ہمارے ہونا چاہیے. چلیے کوئی پڑھیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں, اگر پہلے والے بھائی نے پڑھا ہے تو آپ دوسروں کو موقع دیجیے. آپ نے ابھی پڑھا ہے بھائی؟ نہیں شیخ, میں نے نہیں پڑھا ہے. تو آپ اجازت دیں گے کہ سسٹر کو آگے بڑھا دیں ہم؟ جی شیخ بالکل. جی ہاں, چلیے. ایثار اور قربانی صحابہ کی صفت ہے. ایک دوسرے اپنا حق کسی اور کو دے دینا, یہ صحابہ کی صفت ہے. اللہ ہم کو یہ صفت اپنا توفیق عطا فرمائے. جی سسٹر پڑھی. آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ بھائی. بارک اللہ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحۃ. قال رسول اللہ الدین صلی اللہ النصیحہ, ایسا پڑھی یاد ہو الدین. جائے گا. اچھا, دین النصیحہ بھی صحیح ہے, لیکن جی عرب کے لوگ جو ہے نا الگ الگ کاٹ کے پڑھتے. الدین النصیحہ. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. ماشاء قال اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. جی ہاں, 5 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ سب کو یاد ہو گئی, یا کوئی ایسے ہیں جن کو یاد نہیں ہے یہ؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. کسی کو یاد نہیں ہے تو آپ جو ہے نا بتائیے کہ مجھے یاد نہیں ہے, تو پھر آپ کو یاد ہے یا نہ چیک کریں گے. چلیے سسٹر حاجرہ نشاط. ایک بار دوبارہ آپ اس کا ایکسپلینیشن بریف میں سمجھائیں گے. جی, الدین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے. تو خیر خواہی کا مطلب ہوتا ہے کہ خالص طریقے سے آپ کسی کو بھی خیر خواہی کرے. اگر کوئی آپ سے مشورہ لیتا ہے تو اس میں کوئی بھی چال بازی یا کوئی بھی نقصان والی بات ان کو نہ کہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرے. اگر کوئی مسلمان کو آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور وہ آدمی جو ہے بھولا ہے, تو اس کے بھولے بن کا فائدہ نہ اٹھائے, بلکہ اس کو رہنمائی کرے, میرے بھائی آپ جو خرید رہے اتنے میں نہیں ہے, دراصل یہ اتنے میں ہے. تو چلو اچھا ہے, نقصان اٹھانے دو, مجھے کیا, مجھے تو فائدہ ہوگا. اس ٹائپ کا مسلمان نہیں ہوتا. تو خیر میں نظر آنا ہے ہمیشہ, شر میں نہیں. کسی کے لیے شر کی پلاننگ نہیں کرنا. سسٹر حاجرہ نشاط. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 3. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. پیورٹی از اے پارٹ آف فیتھ. پاکی ایمان کا حصہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. الطہور شطر الایمان. پاکی ایمان کا حصہ ہے. الطہور شطر الایمان. پاکی ایمان کا حصہ ہے. جی شیخ. ماشاء اللہ. دیکھیے اس میں ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمعها. کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے, یاد کرے. نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها, اور اس کو یاد کر لیتا ہے. وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا, اور جیسے سنے ایز اٹ از ویسے سنا ہے. اپنی طرف سے الفاظ آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے. تو کیا کرے, اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے. ابھی محدثین کا جنازہ کسی نے دیکھا ہے کبھی؟ کوئی بڑے محدث کا جنازہ کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا؟ تفسیر حدیث فقہ, اکثر تفسیر پڑھنے والے بھی حدیث رات دن پڑھتے ہیں, فقہ جی پڑھنے شیخ والے بھی سنا ہے.
हाँ, तो सुना उनका है। चेहरा कितना ताजा रहता है। कई मुहद्दिस जी। खास तौर से जो हदीस पढ़ाते 50 साल 60 साल, उनका जनाजा देखे ऐसा लगता है जैसे नहा कर अभी वो सो रहे। तो हमारे उस्ताद ने कहा कि वहां तक, यानी कि दुनिया में भी नजर आता है था, आखिरत में तो आखिरत में है ही, दुनिया में भी आप देखिए उनकी तनख्वाह है, जो मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फकी जो 50 साल मुदर्रिसीन है, आप इनकी जाके अगर आप मालूम करेंगे तो इनकी तनख्वाहें मुआशरे में सबसे कम होती मदारिस में, लेकिन आप उनके चेहरे से ऐसा कभी फील नहीं करेंगे कि ये लोग परेशान है, जबकि उनसे 10-10 20-20 तनख्वाहों वालों को मैंने खुदकुशी करते हुए परेशान होते हुए देखा है। तो ये दरअसल कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी वो दुआ लग जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है तो कायनात में वो दुआ फैली हुई है। जो याद करेगा उसको लगेगी, जो याद करेगा उसको लगेगी। तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग जब हदीस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मेरे जब ये खत्म हो तो 60 हदीस के आप जो है ना हाफिज बन जाए इंशाल्लाह। जैसे 60 फ्लैट अगर आपको मिल जाए तो आप कितने खुश हो जाएंगे। तो आप कहते हैं आई एम द ओनर ऑफ 60 फ्लैट, तो उससे भी ज्यादा आपको खुशी होनी चाहिए कि मैं आज 60 हदीसों का मैंने जो है ना ये टेक्स्ट याद करने का मैं मालिक हूँ। यू आर द ओनर, ऐसा होना चाहिए इंशाल्लाह। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। और आप याद करवा रहे हैं तो हदीस पर अमल कर रहे हैं, जिसने सुना और क्या किया, लोगों तक पहुंचाया। तो अगर फिल वक्त आप जो याद कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, इसका फायदा क्या हो रहा है, लोगों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आपको दो दो, एक तो याद करने की फजीलत मिली, सुनने की फजीलत, याद करने की फजीलत, तीसरा आप मजलिस में बैठकर पढ़ रहे हैं आगे बढ़कर, तो किसी को याद हो रहा तो वो फजीलत और एक मिल गई। देखते हैं अब आप कौन आगे बढ़ते हैं, दो दो आगे बढ़ रहे थे, मैं समझता हूं कि अब भीड़ लग जाएगी इंशाअल्लाह। मौलाना हम्माद उमरी का चेहरा, हाँ, अभी हमारे एक बहुत बड़े अजीम उस्ताद है जिन्होंने जामिया दारुस्सलाम मरात में सही बुखारी उन्होंने पढ़ाई, तो अभी सिस्टर जिक्र कर रहे हैं चैट बॉक्स में कि मौलाना हम्माद उमरी, जिनकी 100 साल 100 से ज्यादा उम्र थी, और वो उमराबाद में पढ़ाया करते हैं सही बुखारी, तो उनका चेहरा 100 साल, अंदाजा लगाई। जब इंतकाल हुआ तो अक्सर ये उम्र में तो चेहरा सबका जो है ना, वैसे जिंदा भी अगर हो तो चेहरा ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बूढ़ा हो चुका है, लेकिन इंतकाल के ऊपर तरोताजा था। अल्लाह अकबर। जी हाँ, आइए हम बढ़ते आगे। हदीस नंबर 4, अस्सलातु नूरुन, नमाज नूर है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु नूरुन, नमाज नूर है। द सलाह इज अ लाइट। तो ये नूर कहाँ काम आएगा, कोई बता सकते हैं? दुनिया में तो खबर में, रहनुमाई है, पुल सिरात के खबर ऊपर। में, पुल सिरात खबर पे। में, और पुल सिरात से पहले भी खबर में। अंधेरा अंधेरा रहेगा। पुल सिरात पर पहले तो मुनाफिकीन परेशान हो जाएंगे, वहां से मुनाफिकीन की परेशानी खास तौर से पुल सिरात से पहले। तो वहां पर रोशनी, जितना ईमान मजबूत रहेगा, तो ये नूर बहुत जरूरी है हमारे। तो ईमान, अमल, अमल में भी सबसे टॉप पर कौन आएगा, कौन सी चीज आएगी, सलाह। तो नमाज को कभी नहीं छोड़ना है। खबर में 6 चीजों की दुआ करते हैं हम, क्या करते हैं, याद है किसी को? हदीस में जब जमा किए तो 6 दुआएं हमको मिलती है खबर की। जो अब कोई भी इंतकाल हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, 6 दुआएं देते हैं। किसी को याद है 6 दुआएं? ऐ अल्लाह, जो मरहूम हो चुके हैं, आपको इत्तला दी कि भाई फला दो से उनके अम्मी का इंतकाल हुआ, तो आप उनको तसल्ली के लिए 6 दुआएं देते हैं। अहादीस में हमको मिलती है 6 दुआएं। नंबर 1, ऐ अल्लाह, उनकी मगफिरत अता फरमा। ऐ उन पर अल्लाह, रहम फरमा, उन पर रहम अल्लाहुम्मा फरमा। अग़फिर लहा और वरहमहा। जी हाँ, वाफिया। हाँ, माफी और मगफिरत 2 हो गए। तीसरा, ऐ अल्लाह उनको खबर में नूर अता फरमा, इसकी भी दलील है। वरहमहा ऐ अल्लाह उनकी खबर को नूर। वसी फरमा, इसकी भी दलील है। ऐ अल्लाह उनको, उनकी खबर को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दे, ये भी एक दुआ मिलती है। 6ठी दुआ मिलती है, अल्लाह उनका दर्जा बना दे। बुलंद जी। फरमा। ऐ अल्लाह उनका और उनको खबर के अजाब से महफूज रख। तो ये कम से कम आपको 6 दुआएं करनी पड़ती है। तो उसके अंदर एक क्या है, ऐ अल्लाह उनके खबर में रोशनी अता फरमा। तो आप खुद अपना इंतजाम करना, हम खुद अपना इंतजाम करना, नमाज की पाबंदी करना। चलिए कोई पढ़िए। वैसे तशरी हमारी आ रही है, इसके अंदर रावी कौन है,
सनद में कौन है, डिटेल में तशरीह आ रही है। ये तो मैं थोड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको और जज्बा आए पढ़ने के लिए। मैं सारी तशरीह नहीं करूंगा क्योंकि हमको कुछ और पढ़ना है आज। जी, कौन पढ़ेंगे? हाथ उठाए। अच्छा, सिस्टर शबाना जी। قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ نور، نماز نور ہے. The salah is a light. صحیح सिर्फ अरबी مسلم. में पढ़िए ताकि याद दिलाएं सबको आप। اوکے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ نور. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ نور. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ نور. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ نور. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ نور. نماز نور ہے. is a light. جی، اور بھی پڑھنا ہے ہم کو جی. تو چیٹ باکس میں لکھے 10 میں سے کس کو کتنے یاد ہے. کوئی 9 لکھے، کوئی 10، جس کو جتنے یاد ہے ذرا لکھے چیٹ باکس میں کس کو کتنے یاد ہے. 10 دیکھیں گے کس کو کتنے یاد ہے. ہاں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. A Muslim is a brother of another Muslim. المسلم اخو المسلم. چلیے پڑھیے. ماشاء اللہ سب لوگ لکھ رہے ہیں 10. کہاں ہے چارٹ؟ اچھا ماشاء اللہ. حاجرہ نشاد 10. فاروق محمد ماشاء اللہ آپ آنےسٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو باقی کے بھی یاد دلا دے. آپ دیکھیں 5 ہے تو شرمائے نے آپ بالکل صحیح بولے. اس کے بدلے میں دعا کرتا ہوں آنےسٹ رہنا ہمیشہ. کچھ بھی اس سے عزت جانے والی نہیں ہے. سیکھنے کے لیے آئے ہم یہاں پر. کوئی علامہ نہیں ہے، میں بھی علامہ نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں، طالب علم ہوں. سب سیکھنے کے لیے ہم آئے. تو 5 آپ نے یاد کیا. اللہ آپ کو باقی کے بھی یاد دلا دے. سیدہ بطول پورے 10 یاد ہے. سیدہ حفصہ 10 بھی یاد ہے. سہیمہ انجم، سسٹر سہیمہ انجم 10. اور بھی زینب یوسف عبداللہ 10 ماشاء اللہ. بلال عارف 9 ماشاء اللہ. اللہ آپ کو اور یاد دلا دے. اونلی 5 زاہدہ انصاری 5. اللہ باقی کے آپ کو یاد دلا دے. روبینہ طارق 10. نمرہ شاہ 8. اللہ آپ کے باقی کے یاد دلا دے. شبانہ عرفان. تو آپ لوگ لکھتے جائیے، باقی کے ہم پڑھیں گے. المسلم اخو المسلم. جی پڑھیے. کوئی پڑھیں گے آگے بڑھ کر؟ شیخ میں پڑھوں؟ جی جی پڑھیے. اسٹارٹ. آواز نہیں آ رہی. المسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم. ماشاء اللہ. حدیث نمبر 6. احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو. پروٹیکٹ یور ٹنگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی ایسی بات کہہ دیتا ہے اس کو پتا نہیں چلتا کہ اس نے کیا کہا، جہنم میں جا گرتا ہے. اور کئی لوگ جہنم میں جاتے ہیں تو زبان کی وجہ سے، کیونکہ آپ جب زبان ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے کسی کو مرہم بھی لگا سکتے ہیں اور کسی کو زخم بھی لگا سکتے ہیں. یہ زبان کو اگر آپ اچھا استعمال کریں گے تو آپ کے اطراف میں پھول جمع ہو جائیں گے دوستوں اور رشتہ داروں شکل میں. اور یہ زبان کو اگر آپ غلط استعمال کریں گے آپ اپنی لائف کے اطراف میں کانٹے بو رہے ہیں جو بہت فیوچر میں آپ کو چبھنے والے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی گزارتے جاؤ، پھول پیرتے جاؤ. اور آپ جہاں سے اٹھے جانے کے بعد آپ کی خوشبو محسوس کرنا، لوگ کتنا اچھا آدمی تھا. 2 حدیثیں سنایا.
10 हदीसें शेख अरशद की किताब से याद करके आया था और सुना के गया। माशाल्लाह, कितने अच्छे लोग हैं। ऐसा होना चाहिए कि भाई कई वो दर्स अटेंड कर रहे कहते हैं आजकल, माशाल्लाह, उसमें से 5 हदीसें याद किए, 5 हदीसें बाद में सुनाते बोल रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसा आपके बारे में कहीं भी है तो ये आदमी जब भी आता है 2 हदीसें एक आयत ताजा करके जाता है, भाई बड़ा अच्छा आदमी। ऐसा होना चाहिए जैसे एक कई फूल रखे हुए हैं, फूल का टोकरा रखा हुआ है, अगर आप उसको उठाकर भी ले जाए तो बहुत देर तक उस जगह पर क्या होती है, फूल की खुशबू आती है। कहीं गोबर पड़ा हुआ है, उठा के ले जाने के बाद भी 1 घंटे तक गोबर की बदबू आती है। तो अगर हम गीबत करें उसके बाद चलो भाई थक गए, तो बाद में क्या है, उस महफिल की गंदगी पूरे दिमाग में छाई हुई होती है। लेकिन अगर हम उस मजलिस में दरूद पढ़े, जिस मजलिस में दरूद ना पढ़ा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन वो मजलिस जो है तबाही वाली मजलिस है। तो इस तरह से हमको याद करना चाहिए। जहां भी मजलिस में बैठे भाई, मजलिस उठने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ हदीसें सुनाओ, कुछ आयत सुनाओ, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी बात को फैलाने वाले का चेहरा अल्लाह तरोताजा रखे। मैं चाहता हूं कि आप सुनने से भी वो फजीलत मिलेगी, मुझे सुनाने से भी वो फजीलत मिलेगी। तो आप जहां जाते हैं आप एक माहौल ये दिमाग में लेकर जाइए कि कम से कम इस मजलिस में मैं 2 आयत 2 हदीस या कम से कम 1 आयत और 1 हदीस कैसे भी सुनाओ किसी भी एक बहाने। ये तरीके से इल्म हम होगा इंशाल्लाह। पढ़िए कोई। शेख मैं पढ़ सकता हूँ? जी पढ़िए। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك. अब देखिए आप, एह जो वर्ड है ना वो उर्दू का स्टाइल है। जैसे हम पढ़ते एह दिनस, अरबी में एह वर्ड नहीं है, इह है, इहफज़। तो फिर पढ़िए 5 टाइम सही, ताकि लोगों को सही याद हो। एहफज़ अरबी में ए नहीं है, तो एह दिना पढ़ते हैं तो आप रोक दीजिए किसी को भी, भाई ऐसा मत पढ़िए, इह दिना। अक्सर इंडिया में जो एह दिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं ना जी, आप भी बुरा मत मानिए भाई, सबके सामने मैंने करेक्शन किया, ये मेरे हम सब सीखने के लिए जमा है। जी फरमाइए। शेख बारकल्लाह फीक जज़ाकल्लाह खैर. जज़ाकल्लाह। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك माशाअल्लाह। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك قال बहुत رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك. आपके अल्लाह हुस्न अखलाक कबूल करे कि मैंने सबके सामने भी कहा तो आपने बुरा नहीं माना। इस पर मैं एक हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन वो मेरे मजलिस में करीब बैठेगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे। अल्लाह आपके अखलाक कबूल करे, हम सब के पार्टिसिपेंट के भी अल्लाह ताला अखलाक कबूल करे, अच्छे बना दे हम सब। नेक्स्ट, ला तहासदू क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासदू, आपस में हसद ना करो। हसद जो है एक हसदल एक कीड़े का नाम है। अरब के लोग जो उस कीड़े को हसदल कहते थे जो जिस्म से चिपक जाता और खून चूसता, जैसे मच्छर खून चूसता वैसे वो कीड़ा भी खून चूसता 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 आखिरी में फट से मर जाता। तो जब उड़ने जाता तो मर जाता, यानी कि अपने आप को भी तकलीफ दिया, सामने वाले को भी तकलीफ दिया। तो हसद उसी से वर्ड निकला, हसदल से हसद, यानी हसद करने वाले की कैफियत भी है कि खुद भी परेशान रहता है और सामने वाले को भी जलन की वजह से परेशान करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई खुद भी परेशान हुए, आकर झूठ बोलना पड़ा, अब्बा के पास डांटी खाई और यूसुफ अलैहिस्सलाम बेचारे उनको भी तकलीफों में डाल दिया। और हसद का मतलब क्या होता है, अल्लाह के डिसीजन पर एतराज। अल्लाह आपने उनको कार क्यों दी, मुझे नहीं देना था। तब अल्लाह आपसे पूछेगा किसको कार देना है, किसको कार नहीं देना है। अब्दुल्ला बेंगलुरु में, हैदराबाद में, क्या मैं उसको कार दूं? अल्लाह ताला जब फैसला लेते हैं तो अल्लाह ताला को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हम कौन होते हैं अल्लाह ताला से पूछने वाले? हाँ, आपको चाहिए तो अल्लाह मुझे भी वो कार अता कीजिए जो मेरे भाई के पास है। इसकी इजाजत है, रश्क की इजाजत है आपको, लेकिन हसद की इजाजत नहीं है। चलिए पढ़िए।
شیخ میں پڑھوں؟ جی پڑھیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. چلیے مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ آنے والے ویک میں جہاں آپ لوگ جائیں گے انشاءاللہ وہاں پر حدیثیں سنائیں گے مجلسوں میں انشاءاللہ، اور اس کی تشریح بھی کریں گے. دیکھنے میں چھوٹے ورڈ ہے لیکن یہ معاشرے کی جڑ ہے. اگر اس پر کنٹرول کر لے تو آدمی بہت سارے معاملات اس کے کئی دشمن جو ہے نا دوستی میں تبدیل ہو جائیں گے. ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ دن بدن دوست دشمن میں تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دشمن کیا ہو جائیں گے؟ دوست ہو جائیں گے انشاءاللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، غصہ نہ کرو. تو غصہ نہ کرو تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اسباب سے ہمیشہ دور رکھو جو چیزیں آپ کو غصہ دلاتی ہے. آپ اگر کہیں مجلس میں جا رہے ہیں، کسی ایسے لوگوں سے مل رہے ہیں تو ان سے ملنا کم کر دیجئے. یا اگر آپ کو کوئی چیز غصہ دلا رہی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر بعض لوگ اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ بھائی کوئی آدمی آتے بولتا تم تو گاؤں والے، تو اس کو غصہ آتا، ارے شہر والے ایسے ہی رہتے، اب اس کو غصہ آتا. تو اپنے اندر سے کیفیت نکالیے کہ آپ اس چیز کو غصے میں کیوں لے رہے، اس کے بولنے سے آپ کیوں بھڑک رہے. آپ وہ مذاق اڑائے. کوئی آدمی عزت دے تو آپ پھولے نہیں سما رہے، کوئی آدمی بے عزتی کرے تو آپ پریشان ہو جا رہے. اس کا مطلب یو آر ڈریون بائی پیپل، آپ لوگوں کے حساب سے چل رہے ہیں. آپ اپنے اصول بنائیے کہ چاہے میری کوئی عزت کرے تو بھی آپ کو فخر نہیں ہونا چاہیے، کوئی آپ کو بے عزتی کرے تو بھی آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کہیے بھائی نہ میں انسانوں سے عزت کا طالب ہوں، نہ میں انسانوں سے ان کے غصے یا ناراضگی سے ڈرتا ہوں. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو، اور مجھے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ بھی چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا. پوری دنیا مل کر بولے کہ آپ اچھے ہیں، لیکن اللہ کے پاس اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو فائدہ کیا ہے. تو اسی لیے لوگوں کی عزت یا لوگوں کی ذلت کو معیار نہ بنائیں. تو بہت سارے ہمارے غصے کی وجہ، بی پی کی وجہ اکثر یہ ہے کہ لوگ مجھے کیا سوچ رہے کیا سوچ رہے. اس پر کنٹرول کرتے رہیے. چلیے پڑھیے کوئی. پڑھوں گا؟ جی ہاں فرم. السلام علیکم قال ورحمۃ رسول اللہ. اللہ صلی اللہ علیہ اچھا ٹکرا وسلم. گئے بھائی. کوئی کسی کا حق، کوئی کسی ایک کوئی اثار اور قربانی کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ. جی شیخ پڑھ لیجیے. جی ہاں. اللہ کے نبی سورہ حشر کے اندر ہے کہ صحابہ نیک تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایثار کرتے تھے، ایک دوسرے کو ترجیح دیتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نشانی یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا حق ماریں گے، یعنی کہ دوسرے سے بڑھ کر دوسرے کا حق چھینیں گے. صحابہ کیا تھے؟ دوسروں اپنا حق چھوڑ کر سامنے والے کو دے دیتے تھے. تو دونوں میں سے کون کس کو دیں گے؟ شیخ جو بھائی پڑھے تھے وہی پڑھیں گے شیخ انشاءاللہ. چلیے ماشاء اللہ. اب دوسرے بھائی راضی ہے لے لینے حق اپنا، یا آپ دے دے رہے؟ نہیں وہی پڑھ لیں دو آپ. جو بھائی شروع کیے تھے وہی شروع کریں. اچھا ایک مرتبہ ایک واقعہ ہے جس کی سند جو ہے نا صحابہ کا واقعہ ہے، اور ممکن ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آتھینٹک جو ہے نا بعض سندیں ایسی ہے کہ کمزور اگر ہو تاریخ میں تو قبول کی جاتی ہے، علماء اکرام بیان کرتے. تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابہ آئے، آ کر کہا کہ یہ میرا حق ہے. دوسرے صحابی نے کہا کہ یہ میرا حق ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اگر کسی کا حق دونوں میں سے کسی ایک کا ہوگا، دوسرے کا تو نہیں ہوگا. اگر کسی نے کسی کا حق مار لیا تو پھر قیامت کے دن میں بچا نہیں سکتا، پھر قیامت کے دن باس پرس ہوگی. جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخرت یاد دلائی تو اب وہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے. اب کیا کہہ رہے تھے؟ ایک صحابی کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ حق اب تم لے لو، وہ کہہ رہے تھے نہیں اب تم لے لو، وہ کہہ رہے تھے کہ اب تم لے لو. تو یہ سند تاریخی اعتبار سے کچھ کمزور سندیں بھی اگر ہوں تو قبول کی جاتی، کیونکہ صحابہ اکرام سے ایسا ممکن تھا کہ ایسا ہوا ہوگا.
चलिए दोनों में से कौन आगे बढ़ रहे? दोनों भी खामोश हो गए। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, कोई बात नहीं, एक दूसरे से शेख आगे। आप ही नाम ले दे। अच्छा मुझे नहीं मालूम दोनों में से कौन का नाम भी नहीं मालूम, यहाँ तो पता नहीं चलता ना। तो आप लोग डरा दिया मैं आप दोनों को, माजरत चाहता हूँ। मैं तो एक जज्बे में लाना चाह रहा था ताकि दोनों एक दूसरे को आप बोले। मैं तो एक तालीम देना चाह रहा था ताकि फ्यूचर में कहीं पर भी ऐसा हो तो हमारे पार्टिसिपेंट जो है ना सबसे जुदा अखलाक के नजर आए, हमारे अटेंड करने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारक पढ़ने वाले सबसे जुदा नजर आए। हम सब लोग बोल दिए ग्लोबल लर्निंग इंस्टीट्यूट के तलबा है, ये लोग सबसे अलग है इनके अखलाक। शेख मैं हाथ भी नीचे कर दिया, हाथ भी नीचे कर दिया। चलिए हम ऐसा करते कोई तीसरे पढ़ ले, कोई तीसरे पढ़ ले, दोनों भाई को अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए, कोई तीसरे पढ़ ले। लिंक तो है मेरे पास जी दो, दूसरे क्लासेस को नहीं होता सेम टाइमिंग्स ना। हाँ जैनब पढ़ ली, म्यूट कर लीजिए, जिनके घर में आवाज आ रहे हैं उनको म्यूट कर। जी पढ़िए सिस्टर जैनब जी। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب माशाअल्लाह, do not get angry. अल्लाह ताला हमको इस पर अमल करने तौफीक अता फरमाए जो मुसलमानों को इसकी सख्त जरूरत है इस नसीहत की। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة शिर्कुन, बस शगुनी शिरक है। चलिए कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। तो आपको कैसे याद करना है सबको आइडिया हो गया। तो एक बुक हमारी, एक पार्ट हमारा खत्म हो गया लेवल 1। तो ये दो वर्ड वाले हदीसें थी, तो इंशाल्लाह आप लोग याद कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम और एक स्लाइड, तो मुझे अच्छा यहाँ देखिए हम और एक कोई चीज, मदीना हदीस टाइम टेबल क्लास अहादीस सिलेबस प्लान, ये तो टाइम टेबल है राइट, ये तो आपको मिल गया होगा। अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, जब तक जिक्र कीजिए तस्बीहात पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो यहाँ पर चीज जो है नजर नहीं है। चलिए जब तक आप लोग बताइए, किसी को हमारे सिलेबस में जो 4 बुक्स हैं किसी को याद है? सिलेबस प्लान, सिलेबस प्लान, हाँ ये देखिए, किसी को याद हो गया बुक्स नेम? यहाँ पर देखिए बुक्स नेम, किसी को याद हो गए? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, मौजूद है पूरे 27? आज 27 आए, सारे क्लासों में 41 आ रहे हैं, हदीस में 27 आ रहे हैं। तो मैं मालूम किया कि ऐसा कम क्यों हो रहे हैं, तो कहा कि गल्फ वाले अक्सर जुम्मा के छुट्टी में रहते और काफी गम में भी है वो लोग कि हमको शेख की क्लास नहीं मिल रही है, तो वो लोग बाद में रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं और उनको ख्वाहिश है कि लाइव पढ़ना, लेकिन वो लोग जुम्मा के दिन ही छुट्टी मिलती है और फैमिली के साथ वो लोग बाहर रहते हैं। लेकिन हमारे पास भी है कि लगातार 5 दिन क्लास होती है, दरमियान में अचानक ब्रेक हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं बेतरतीबी ना आ जाए। चलिए कोई नाम सुना सकते हैं हमारे सिलेबस के नाम? जी शेख सुनाइए, याद करवाइए, 5 टाइम बताइए। من أطيب المنح في علم المصطلح 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 किसकी है ये? शेख अब्दुल मुहसिन अल अब्बाद। अभी ये मौजूद है शेख मस्जिद नबवी में,
جو ہے نا یہ میرے استاذ بھی ہیں الحمدللہ مسجد نبی میں کافی 90 سال کے بوڑھے, اور یہ شیخ عبد الکریم مراد, تو ایک اور ایک بھی تھے مراد, یہ وہی ہے یا کیا ہے, میرے بھی ایک استاد ہے, واللہ عالم. جی جی شیخ دوسری کتاب بولو. سب کو یاد ہو گئے, کسی کو یاد نہیں ہے نام؟ کیونکہ کل کے دن آپ جا کر مارکیٹ میں کہیں گے کسی سے بھی کہ میں مصطلح الحدیث پڑھا ہوں, تو لوگ کہیں گے بھائی کون سی کتاب پڑھے. تو آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد نہیں ہے تو ذرا آپ بتائیے, میں ان کو یاد کرواتا ہوں. کسی کو یاد نہیں ہے تو آپ بتائیے بغیر شرمائے کے. جی پھر ریوائز کر دیں, عربک میں اس کا نام ہے تو پلیز پھر ریوائز کر دیں. ریپیٹ کرنا ہے؟ جی شیخ ریپیٹ کر دیں پلیز. ہاں کوئی ریپیٹ کرنا چاہیں گے؟ من اطیب المنح, من اطیب, اطیب مانے بہترین, منح مانے تحفہ, بہترین تحفے, فی علم المصطلح, علم مصطلح مانے مصطلح الحدیث, حدیث ٹرمینالوجی, حدیث کے جو ٹرمینالوجیز ہیں, حدیث کے جو ڈیفینیشن ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصطلح الحدیث. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے سبجیکٹ کا نام کیا ہے؟ مصطلح الحدیث. بولیے 5 ٹائم. مصطلح الحدیث. 5 ٹائم بولیے مصطلح الحدیث. اگر آپ جو ہے سبجیکٹ کا نام ہی عربی میں نہیں بول پائیں گے تو لوگ بولیں گے کہ بھائی آپ کا علم کا کیا معیار ہے, کیا معیار ہے, آپ کو سبجیکٹ بولنے نہیں آتا. مصطلح الحدیث 5 ٹائم بولیے مصطلح الحدیث, مصطلح الحدیث, مصطلح الحدیث, حدیث کے اصطلاحات, اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ حدیث کے اصطلاحات, حدیث کے اصطلاحات. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ٹرمینالوجیز آف حدیث, ٹرمینالوجیز آف حدیث. تو آپ لوگ مصطلح الحدیث, مصطلح الحدیث, تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ مصطلح الحدیث پڑھ رہے. کس کے پاس پڑھ رہے؟ شیخ ارشد بشیر کے پاس پڑھ رہے. کون سی کتاب پڑھ رہے؟ من اطیب المنح فی علم المصطلح. بولتے ہی آپ کا ایگزام لینے والا غائب ہاتھ. ارے بہت معلومات ہے بچوں, ایسے ہی نہیں پڑھ رہے, ڈمی نہیں پڑھ رہے, فیک نہیں پڑھ رہے, پیور پڑھ رہے, ٹرو پڑھ رہے بچے, آپ بہت اچھے. تو اس طریقے سے آپ لوگ جہاں لوگوں کو بولیں گے آہستہ آہستہ معاشرے میں آپ پر بھروسہ آنا شروع ہوتا, معتبر بنتے, آپ معتمد ہوتے, اعتماد بڑھتا, تو لوگ آپ سے مسئلے مسائل پوچھنے کے حق سے بھروسہ کرتے. تو کتابوں کے نام یاد کرتے جائے, آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں میں آپ کی عزت بڑھائے گا, بھروسہ دے گا. چلیے کسی کو یاد نہیں ہے؟ من اطیب المنح, بہترین تحفہ, فی علم المصطلح, یعنی مصطلح الحدیث. مصطلح کا آدھا ورڈ استعمال کیا گیا, مصطلح الحدیث کا آدھا ورڈ استعمال کیا گیا الف لام. عرب کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ الف لام معہود ذہنی کا, تو اس کے اندر مراد کیا ہے؟ حدیث کے مصطلح, کوئی فقہ کے مصطلح نہیں, حدیث کے مصطلح. تو فی علم المصطلح, اس کا نام علم المصطلح بھی بولتے ہیں, اس کو مصطلح الحدیث بھی بولتے ہیں, علوم الحدیث بھی بولتے ہیں. تو اسی لیے میری اور ایک کتاب کا نام یہاں نیچے دیکھیں لیفٹ سائڈ پر, علوم الحدیث. چلیے اور ایک کتاب کا نام نزہۃ النظر, یاد کروائیے سب کو, 5 ٹائم کو یاد کروائیے. نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر. پورا یاد بھی نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. نزہۃ النظر ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی, نزہۃ النظر ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی. 5 ٹائم بتائیے. جی نزہۃ النظر ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی. 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 نزہۃ النظر ابن حجر رحمت اللہ علیہ. چلیے ماشاء, کسی کو علوم الحدیث تو اردو میں پڑھ لیا, عربی میں کتابیں ہیں, آپ کو اردو میں پڑھنا ہے تو میری کتاب دیکھ سکتے. جی کوئی کچھ بتائیے. اس کا نزہۃ النظر کا معنی کیا ہے شیخ؟ نزہۃ النظر مانے آپ کی نظر کی تفریح, اچھائی. نزہہ مانے تفریح, یعنی آپ کو اچھا لگے گا, آپ کی نظر کو اچھا لگے گا جب آپ میری کتاب پڑھیں گے بول کر وہ انوائٹ کر رہے ہیں. پرانے زمانے کا مارکیٹنگ اسٹائل ہے. آپ کو تحفے چاہیے, من اطیب المنح, آپ کو تحفے چاہیے, آئیے نا میری کتاب پڑھیے, تحفے ملیں گے. فی علم المصطلح, یہ پرانے زمانے کے بہت زبردست علماء ہے, دیکھیں کیسا مارکیٹنگ کر رہے, ایسا پیش کرتے تھے کہ پڑھنے والا شوق سے کتاب پڑھتا تھا. تو علماء جو ہے نا ماشاءاللہ
क्या करते थे? शेख आवाज नहीं आ रही है। शेख आवाज नहीं आ रही है। नहीं शेख नहीं पढ़ा रहे हैं, शेख कुछ ब्रेक। शेख स्क्रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंटरनेट चला गया था। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख का नेट का मसला है। इंटरनेट गया, आ गया शेख, आ गया। टाइम टेबल, ये तो टाइम टेबल है। विद कुरानिक मदीना अरबिक ऑफ फाइनल लान, ये है शायद, हाँ ये। तो आपको मालूम हो गया नुज़हतुन नज़र क्या है। दरअसल ये डिटेल वर्जन है। असल में पहले इन्होंने बड़ा कॉन्साइज वर्जन निकाला था नुग़बतुल फ़िक्र, जो उसके अंदर टर्मिनोलॉजीज वादे नहीं हो रही थी आम तलबा पर। तो उन्होंने फिर अब खुद इमाम ने खुद शरह की, इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने खुद शरह की मुस्तलह अहलुल असर। अहलुल असर जो है, ये जो है सिनोनिम है अहलुल हदीस यानी मुहद्दिसीन। अहलुल असर सिनोनिम है किसका? अहलुल हदीस। असर और हदीस, मुहद्दिसीन के पास सुन्नत, असर और हदीस तीनों भी आपस में सिनोनिम है। ठीक है, चलिए। नुज़हतुन नज़र शेख सबको ये याद हो गई। फी तौज़ीही नहबतुल तौज़ीह माने फ़िक्र। वज़ाहत, एक्सप्लेनेशन। अच्छा, नुग़बतुल फ़िक्र के तौज़ीह में इन्होंने नुज़हतुन नज़र किताब लिखी, जिसके अंदर पूरे डेफिनेशन, तारीफात है जो हमने याद की है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपने क्या किताबें पढ़ी है हदीस में, मुस्तलाह में, तो आप कहे भाई मुस्तलाह में हमने 2 किताबें पढ़ी हैं, एक जदीद, एक कदीम। कदीम मतलब 200 साल पहले, इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह का जमाना। अब जदीद यानी आजकल के जमाने में भी उलमा इकराम ने इसको आसान अंदाज में पेश किया। जदीद में मिन अत्यबिल मिनह फी इल्मिल मुस्तलह, और कदीम में नुज़हतुन नज़र इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की। और इसके हमने इख्तिबासात पढ़े हैं पहले मरहले में। क्या आपने पूरी किताब पढ़ ली? नहीं। पूरी किताब पढ़ ली बोल तो फिर एग्जाम लेना शुरू कर देते हो आपका। तो आप कहिए कि नहीं हम लोग फर्स्ट लेवल में है, अभी हमने इख्तिबासात पढ़े हैं, हम नेक्स्ट लेवल में इंशाल्लाह इसके डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए, मैं आपको फ्यूचर में कैसे हैंडल करना है वो ज़ाबत सिखा रहा हूँ। हदीस में, अब ये तो मुस्तलाह में 3 किताबें हैं, हदीस में हमारी कितनी किताबें मुकर्रर हैं? 3 किताबें। तो 3 किताबों में से मैंने चुनकर, नीचे जो ब्लू रंग की किताब है ना, ये 2 बड़ी किताबों में से चुनकर उसमें से मैंने सेलेक्ट किया। तो मेरे पास पहले 2-2 वर्ड के कुछ हदीसें थी, तो वो 40 और 20 ये जो जामिउल उलूम वल हिकम है और 40 अन-नवविया, इसमें से 20 हदीसें और 40 हदीसें छोटी छोटी मेरे पास मैंने अलग से जमा की थी तलबा के लिए। दोनों को मर्ज करके 60 हदीसों का मैंने एक गुलदस्ता बनाया है, ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस तय्यबा से हम खुशबू ले सके इंशाल्लाह। तो आप लोग भी ये गुलदस्ता अपने जिंदगियों में अपनाएं। जो जो इन फूलों को अपने जिंदगियों में अपनाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हदीस आपको ऐसा लगेगा एक एक खुशबूदार फूल है, ऐसा लगेगा कि एक एक मोती है। तो इस तरीके से इन मोतियों को सजाइए अपने जिंदगियों को और खुशबू से मुअत्तर कर लीजिए अपने जिंदगियों को। किताब का नाम पढ़िए कोई 5 टाइम, जामिउल उलूम वल हिकम। ये पहले किताब पहले हक है, जो पहले है उसका नाम याद रखेंगे, अल अर्बईन
अन्नवविय्या, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह। और उसकी शरह आज के बहुत सारे लोगों ने शरह की है, लेकिन बेस्ट शरह मोहम्मद इब्न सालेह अल उसैमीन। कोई अगर डिटेल में शरह पढ़ना चाहता है तो उसको मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन की शरह पढ़नी चाहिए। तो अल अर्बईन अन्नवविय्या को 5 टाइम दोहराइए। इसमें 42 हदीसें हैं। इसमें 42 हदीसें हैं। अर्बईन नवविया में 42 हदीसें हैं। जामिउल उलूम अल हिकम में मजीद 8, ये किताब के अंदर और 8 करके 50 हदीसों को इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह ने जमा किया है। उसमें से 20 हदीसें हमने पहले मरहले में याद करने का फैसला किया, जो ने मैंने मुंतखब अहादीस में 20 जमा की है छोटे छोटे हदीसों के साथ। नेक्स्ट मरहले में बाकी के 30 हदीसें हम याद करेंगे मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह। अभी अर्बईन नवविया याद करवा। एक सवाल है, ये शरह क्या चीज होती है शेख? शरह माने जैसे तफसीर होती है, कुरान मजीद की तफसीर होती है, वैसा हदीस को तफसीर नहीं कहते, हदीस को शरह कहते हैं। जब आप हदीस को एक्सप्लेन करते कि भाई रावी कौन है, इसके अंदर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कलीमा कहा है इसका मतलब क्या है, लुगत में माना क्या है, इससे फिक़ही मसले क्या मिलते हैं, क्या इसमें हुक्म मिलता है, कमांड मिलता है, मकरूह है, मुबाह है, मुस्तहब है, तो फिक़ही मसले, तरबवी मसले, तरबियती मसले, अकीदे के मसले जब आप इसके अंदर से एक्सप्लेन करते तो शरह में क्या होता है, डिटेल में होती है। तो हदीस 3 लाइन की होती है, लेकिन इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की अगर आप किताब पढ़ेंगे तो सफ़े। तो बाद औक़ात जैसे एक छोटी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए और आपके सर पर एक मग़फ़र था, लोहे की जो है ना एक टोपी थी, इससे जो है 40 मसले निकाले। कौन? इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह। कितने मसले निकाले? 40। और इन्नमल आमालु बिन्नियात, मेरे 300 पेजेस में मैंने इसकी शरह तैयार की है। मैं लिखते गया दिख गया, मुझे कई हफ्ते लग गए। इसके अंदर मैंने 100 पॉइंट जमा किए। तो एक देखने में इन्नमल आमालु बिन्नियात, लेकिन इसके अंदर 100 पॉइंट मैंने जमा किए और मुझे कई महीने लगे। 300 पेजेस लास्ट वीक जो है ना मेरे राइटर लिखकर भेजे हैं। तो आप लोगों को मुझे वो शरह करना है, तो उसको कहते हैं शरह। शरह माने डिटेल एक्सप्लेनेशन को शरह कहते हैं। लिखने वालों को क्या बोलेंगे शेख? शारिह कहते हैं। शरह लिखने वाले को शारिह कहते हैं। शारिह हदीस, शारिहीन हदीस, मुहद्दिस भी कहते हैं हिंदुस्तान में। जी। अल अर्बईन अन्नवविया की शरह क्या है? जामिउल उलूम अल हिकम भी शरह है, मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन की भी शरह है। तो आप कहेंगे कदीम शरह पढ़ना है तो जामिउल उलूम अल हिकम पढ़ी, अर्बईन नवविया की। अगर जदीद शरह पढ़ना है तो बहुत है, शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद, बहुत है। लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा टॉप आजकल इंटरनेट पे स्प्रेड हुई, वायरल होकर, वो मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन की हुई है। तो आइए कोई दोहराइए मेरे साथ 5 मरतबा। अल अर्बईन अन्नवविय्या, 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 मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन। उसकी कदीम शरह कौन सी है? एक बताइए। कदीम शरह, शरह, असल शरह भी वर्ड नहीं है, शरहुन, अरबिक में रा पे जज़म है, देखे शरह, उसकी शरह सही उसका प्रोनाउंसिएशन है। इसकी शरह बोले तो एक आम अंदाज है पब्लिक को समझा, लेकिन जब आप तलबा हैं तो इल्मी मजलिसों में इसको कहते हैं इसकी शरह बताइए। तो आप लोग भी सही वर्ड इस्तेमाल करिए, शरहुल अर्बईन। तो कदीम शरह इसकी इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह ने की, जो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है। नाम क्या है? जामिउल उलूमी वल हिकम। यहाँ देखिए क्या नाम है? जामिउल उलूमी वल हिकम। 5 टाइम बोलिए। जामिउल लिखा हुआ देखिए, फी शरही 50 हदीसन मिन। तो इन्होंने 2 काम किए। एक तो इन्होंने 8 हदीसें ऐड की, फिर उसके बाद एक हदीस की 5-5 पेज, 10-10 पेज में ऐसी शरह की है। लोग कहते हैं कि आज तक ऐसी शरह देखने में, अगर किसी को हदीस की शरह का लुत्फ लेना है तो जामिउल उलूम अल हिकम जरूर पढ़िए। और खुशी की बात है कि लास्ट वीक मैंने देखा फेसबुक पर किसी ने इसका बेहतरीन उर्दू में भी तर्जमा कर दिया है, नॉर्थ इंडिया के किसी आलिम ने। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। जी।
शेख एक सवाल पूछूं? जी फरमाइए। जी ये अल अरबाइन जो है इसमें आपने बताया 42 अहादीस है। अरबाइन अरबी में 40 को नहीं कहते? अरबाउन 40 को कहते हैं ना। जी जी तो तो अहादीस तो 40 से ज्यादा 42 अरब के लोग क्या करते थे मालूम, 40 बाकी के 2 को छोड़ देते। अरब का एक तरीका है, अगर 39 है तो 40 अप्रोक्सीमेटली, हम उर्दू में बोलते हैं लगभग, तो जो करीबी बड़ा आदद है उसको लेकर नाम रख देते थे। जी जी शेख एक सवाल जी फरमाइए। ये कोई इस बारे में दलील है कि सुना है कि कोई 40 हदीस जिसको याद होंगी वो जन्नत में जाएगा, इस तरह की कोई वो हदीस? ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं। ओके जज़ाक। मशहूर है, बहुत मशहूर है, लेकिन आपने तो एक हदीस भी अगर याद कर ली है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लग जाएगी ना आपको इंशाअल्लाह। अब आपकी मर्जी है कि 40 याद करे या बढ़कर। आप लोगों ने तो इरादा किया ना इससे पहले की मजलिस में कि खुद नहीं तो बच्चों को जरूर 2500 हदीसें सही है इनकी याद कराएंगी। मुझे ऐसा याद पड़ रहा है कि आप सबने आमीन इंशाअल्लाह कहा था। ऐसा जी इंशाअल्लाह कहिए, अल्लाह करा देगा। खुद याद करिए या अपने स्टूडेंट को याद करवाइए, अपने नस्ल में किसी बच्चे को याद करवाइए, लेकिन नियत तो कर लीजिए इंशाअल्लाह। आज शुरुआत 60 से करेंगे, फ्यूचर में 2500 तक भी करेंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई हदीस 3 लाख हदीसें याद कर लेता है सनदों के साथ, सनद को हदीस कहते हैं, मुहद्दिसीन जो सनद को हदीस कहते हैं, तो उसको हाफिज का लक़ब मिलता था। क्या लक़ब? हाफिज। हाफिज। हमारे पास हाफिज कुरान होता है। हाफिज हदीस में हाफिज का लक़ब मिलने के लिए कितने हदीसें याद करना पड़ेगा? सनद की मैं बात कर रहा हूँ। 3 लाख और बाद ने का 5 लाख, बाद ने का 5 लाख, तो हाफिज। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, ये लक़ब पाना है तो कितने सनद याद करना है? 7 लाख। कौन है आपके जहन में, कौन आएगा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस? 4-5 नाम लीजिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। इमाम बुखारी माशाअल्लाह। और इमाम मुस्लिम। इमाम मुस्लिम माशाअल्लाह। उनके उस्ताद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। नहीं देखिए, जो मुहद्दिसीन का नाम है या मत बोलिए, लेकिन जिनके लिए उलमा इकराम ने इस्तेमाल किया, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम याहिया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, इनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हाफिज का जो लक़ब मिलता है, बहुत सारे मुहद्दिसीन पर यह फिट आता है, जैसे कि इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनसे पहले इमाम सुनन अरबा के मुअल्लिफीन है, इसी तरीके से इमाम दाराक़ुत्नी रहमतुल्लाह अलैह है, इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह है, और आखिरी जमाने में हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह को भी क्या लक़ब मिलता है? हाफिज। तो इसका मतलब हमारे 200 साल तक भी ये सिलसिला जारी था सनदे याद करने का। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि सही हदीस कितनी है और हसन हदीसें कितनी है? मैं मतन की बात कर रहा हूँ। सनद तो 7 लाख है, सनद तो 7 लाख है, में से एक हदीस है तो बाद औक़ात 70 सनदें होती है। आपने पढ़ा ना मुतवातिर के डेफिनेशन में कि कई सनदें होती है एक टेक्स्ट के लिए, राइट? तो अभी मैं सनद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मतन की बात कर रहा हूं कि सही अहादीस से साबित मतन कितने टेक्स्ट? 4000 से ज्यादा नहीं है। एक तहकीक के मुताबिक कितने हैं टेक्स्ट? 4000। और हसन भी मिला लेंगे, सही और हसन मिला लेंगे तो 15000 से ज्यादा नहीं है, सही और हसन। तो अगर आप सही को 4000 कह रहे हैं तो सही बुखारी और सही मुस्लिम में नॉन रिपीटेड तकरीबन लगभग कितने? 2500 से 3000 याद होगा आपको। जी शेख। तो इसका मतलब निकला कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने 2/3 कवर कर लिया। 4000 में से 2/3 तो सही बुखारी सही मुस्लिम में कवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी के सनदें होती हैं सही और सही और हसन सही मिलाकर 4000 है, सही और हसन मिलाएंगे तो 13000 से 15000 के दरमियान टेक्स्ट इतना ही है दुनिया में।
तो कुतुब सित्ता मशहूर क्यों है बताइए? कुतुब सित्ता इसलिए मशहूर है कि 90% टेक्स्ट सही और हसन का कुतुब सित्ता ने घेर लिया। बाकी का 10% आपको पाने के लिए मुस्नद अहमद बिन हम्बल, मुस्नद तयालिसी, सुनन दारमी, सुनन दाराकुतनी, बैहकी, ऐसा आपको बाकी किताबें पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कुतुब सित्ता की अहमियत ज्यादा क्यों है? तो आपको बताइए इसका जवाब क्या है? कुतुब सित्ता की अहमियत क्यों है? क्योंकि उन्होंने 90% हदीस ज्यादा मौजूद है। 90% हदीसों को उन्होंने घेर लिया है। तो अगर आप कुतुब सित्ता पढ़ते हैं, उसके ऑथेंटिक पढ़ना है। कुतुब सित्ता में सही बुखारी, सही मुस्लिम में तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ऑथेंटिक है, लेकिन उसके बाद बच जाते हैं 4, सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिजी, सुनन नसाई, सुनन इब्ने माजा। तो इसके अंदर जो है आपको सही भी मिलते हैं और ज़ईफ भी मिलते हैं। तो ज़ईफ से अपने आप को बचाना, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही को अलग, ज़ईफ को अलग कर दिया है। जामिउल उलूम वल हिकम का कोई नाम 5 टाइम रिपीट कीजिए। तो इन्होंने क्या किया, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बिगिनर जो है 13 हदीसें 15 हदीसें कैसे पढ़ेगा? तो उन्होंने कहा 42 हदीसें उन्होंने जमा की। कहा पूरा इस्लाम इस पर घूम रहा है, या तो इससे शुरू करो या कम से कम इतना तो हर एक को याद। जैसा कुरान मजीद में सूरह फातिहा, कुल के सूरह अलम कैसा याद होता है, वैसा हदीसों में कम से कम क्या याद रहना चाहिए बिगिनर को? 40 नवविया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरे याद करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और एक और मरतबा रिपीट कीजिए सर, सही और हसन मिलाकर कितने हैं? सही और हसन मिलाकर 13,000 से 15,000। जामिउल उलूम वल हिकम को आपने कोई जो कहा रिपीट कि करिए। 3 लाख हदीस सनद के साथ उसको हाफिज कहते हैं, और 5 लाख को जिनको याद है उनको क्या कहते हैं? एक कौल के मुताबिक 5 लाख को हाफिज है, 3 लाख को भी हाफिज कहा। जज़ाकल्लाह खैर। और वैसे और भी है, हाकिम, जैसे हाकिम कौन है तो फिर और ज्यादा हदीस याद करने वाला। हुज्जा कौन है तो उसमें समझने में भी माहिर है, याद भी किया है और समझने में माहिर है, तो हुज्जा है। तो लेकिन हर इस्तिलाह ज्यादा मशहूर नहीं हुई, लेकिन हाफिज और अमीरुल मोमिनीन की इस्तिलाह ज्यादा आप पढ़ते हैं जगह जगह। तो ये उर्दू का हाफिज नहीं होता बल्कि हदीस का हाफिज होता है। जामिउल उलूम वल हिकम को कोई 5 टाइम रिपीट करेंगे? शेख एक सवाल कर सकता हूँ? एक मरतबा रिपीट करने के बाद कर लेंगे। जामे अल उलूम वल हिकम, इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह को भी हाफिज का लक़ब दिया गया। जी, जामे अल उलूम वल हिकम, जामिउल, जामे अल उलूम नहीं जामिउल ऐसा पढ़ते हैं, जामिउल। जामिउल जामे उलूम माने वल खजाना, जमा करने वाला खजाना। जामे का माना जमा करने वाला, इल्म और हिकमत को जमा करने वाली किताब, ये इसका नाम है। जामिउल उलूम वल हिकम, जामिउल उलूम वल हिकम, जामिउल उलूम वल हिकम, जामिउल उलूमी वल हिकम, जामिउल उलूमी वल हिकम। इसकी 2 खुसूसियतें बताइए। इसमें इन्होंने सिर्फ शरह की है या नई हदीसें भी ऐड की है? शरह की है, शरह और नई हदीसें भी ऐड करी 8 हदीसें ऐड भी किए। 40 नबविया पर, 40 नबविया की ना सिर्फ इन्होंने शरह की है बल्कि इन्होंने 8 हदीसें ऐड भी की है। तो कितनी हो गई? 42 से कितनी हो गई इसके अंदर? 50। इसीलिए क्या लिखा हुआ देखे, फी शरही 50 हदीसन। क्या लिखा हुआ है? फी शरही 50। 50 माने 50 मिन जवामिउल कलिम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात छोटे होते थे लेकिन बड़े जामे होते थे, तो इसलिए हदीस को क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हदीस का एक लक़ब क्या है? जवामिउल कलिम। हदीस का लक़ब क्या है? हदीस का लक़ब क्या है? जवामिउल कलिम। 5 टाइम बोलिए कोई। हदीस का लक़ब जवामिउल कलिम है। 5 टाइम बोलिए कोई, ताकि सबको याद हो जाए। हदीस का लक़ब जवामिउल कलिम, हदीस का लक़ब जवामिउल कलिम, ऐसा बताइए। हदीस का लक़ब जवामिउल कलिम, हदीस का लक़ब जवामिउल कलिम, हदीस का लक़ब जवामिउल कलिम, हदीस का लक़ब जवामिउल कलिम। देखा आपने, उलमा की किताबों में इतना इल्म, खाली अट्टे पे इतना इल्म है, अभी अंदर कितना इल्म है नहीं मालूम।
अरे अट्टे पे इतना इल्म है, अंदा लगाई, इसको कहते हैं आलिम। आलिम क्या करता है, एक एक मिनट वेस्ट नहीं करता, वो जबान हिलाता है तो लोगों को इल्म मिलता है। अट्टे पे इतना इल्म है, देखिए, अल्लाह अकबर। अल्लाह हमको भी आलिमों के रस्ते कदम, नक्श कदम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीके के मुताबिक चला दे। आमीन। तो अच्छा ये बताइए कि जिस वक्त पर कुतुब सित्ता लिखी जा रही थी तो जमाने के हालात क्या थे? तो उस जमाने के हालात ये थे कि उस जमाने में जो थी कौन सी खिलाफत अब्बासिया चल रही थी। तो आप लोग जानते हैं खिलाफत राशिदा कितने साल थी? 30 साल। 30 साल, यानी 632 से लेकर 661 तक खिलाफत राशिदा का दौर है ईसवी, यानी कि 41 11 हिजरी से 41 हिजरी, और 632 ईस्वी से लेकर 661 यह खिलाफत राशिदा का दौर है। और 5 खलीफा गुजरे हैं। कौन से? अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, और हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। अक्सर हमारे पास 4 खलीफा मशहूर है लोगों में, लेकिन असल में 5 होते हैं। फिर ये 5 खुलफा के बाद दौर आया बनु उमैया का जमाना। तो बनु उमैया में कितने खलीफा बने? 14 खलीफा बने। और इनका जो दौर है 41 से लेकर हिजरी से लेकर 132 हिजरी, यानी ईस्वी एतबार से 661 to 750। फिर उसके बाद यानी टोटल जो है 90 साल हुकूमत रही बनु उमैया की। और इनके दौर में उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह एक जबरदस्त खलीफा थे। इन्होंने इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह और अबू बकर इब्ने हजम रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि हदीसें जमा करो। तो इन्होंने कहा कि हमने दफ्तर जमा करें। यानी ये उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ जबकि अभी 4 इमामों से भी पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से भी पहले के जमाने में उमर बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह जब खलीफा थे तो उस वक्त पर 101 यानी कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 80 साल में पैदा हुए, यानी कि 20 साल तक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने शुरू में फिलॉसफी ऐसा तालीम में वो मशगूल थे। बाद में उनको इल्म शरीयत की तरफ उनको रग़बत हुई, तो उसके बाद उन्होंने शुरू किया। तो 100 के बाद उन्होंने शुरुआत की। तो उसके बाद 10 साल कूफा के कानून के मुताबिक ये है कि 10 साल पहले कुरान पढ़ना, उसके बाद हदीस पढ़ना। तो 110 साल में जब उन्होंने हदीस पढ़ना शुरू किया है, तो इस लिहाज से अगर देखें तो मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है कि चारों इमाम से पहले, ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे कि इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह ने और अबू बकर बिन हज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इन्होंने क्या किया कि सहाबा और ताबईन, सहाबा और उनके मशहूर शागिर्दों का पूरा इल्म इन दोनों ने जमा किया था। तो उमर बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह बड़े वो हाकिम भी थे, खलीफा भी थे, साथ में बहुत बड़े आलिम भी थे। उनके फतवे भी आप देखेंगे चारों मसालिक के किताबों में उमर बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह के फतवे भी मिलते हैं। तो वो ना सिर्फ मुफ्ती थे बल्कि खलीफा भी थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको मालूम था कि कौन आलिम है, रियल आलिम। तो उन्होंने इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह को और अबू बकर बिन हज़म रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने हुक्म दिया। तो उन्होंने कहा हमने सहाबा और ताबईन से जितने थे हमने पूरे जमा कर दिए। और अगर आपको इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह के 500 शागिर्द उन्होंने मिलकर इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह की उन किताबों को उन्होंने लिखा। तो कितने शागिर्दों ने, 500 शागिर्दों ने मिलकर वो पूरे हदीसों को उन्होंने लिखा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लिखने का रिवाज बहुत पहले से शुरू हो चुका था। जो लोग कहते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत बाद में आए, तो ये लिखने का रिवाज क्या था? तो इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह के 500 शागिर्द में से एक शागिर्द है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। तो आप अंदाजा लगाइए कि उनकी किताब है मुवत्ता, उनकी किताब का नाम है मुवत्ता। मुवत्ता नहीं है, मुवत्ता, वहाँ पे जबर। तो मुवत्ता उनकी किताब का
नाम है। तो वैसे दिरासात फिल हदीस नबवी, मुस्तफ़ा अल आज़मी एक बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये 500 शागिर्दों का नाम जिक्र किया और उनकी किताबें कहाँ कहाँ मौजूद है दुनिया में, वो किताबों का उन्होंने जिक्र किया। वो किताबें फिर बाद में जाकर होते होते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब उन्होंने सही बुखारी लिखने का इरादा किया तो कहते हैं मैं 2 मीनारों की शक्ल में किताबें जमा कर बैठता था, और मैं ना सिर्फ उनको वो हदीसों के हाफिज भी थे बल्कि हदीसें उनके पास लिखी हुई बहुत सारे सहीफे जमा हो चुके थे। तो इससे पता चलता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के से जमाने से पहले भी लिखने का रिवाज मौजूद था। तो बनु उमैया के जमाने में ताशखंद के मकाम पर जब ताशखंद फतह हुआ तो वहां पर चाइनीज थे, और ये चाइनीज थे इनको पेपर बनाने की टेक्नोलॉजी मालूम थी। तो वहां के खुलफा ने कहा कि हम तुमको अच्छी जिंदगी देंगे, कैद खाने की जिंदगी नहीं बल्कि अच्छी जिंदगी देंगे, लेकिन तुम हमारे कंट्रोल में रहोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम पेपर टेक्नोलॉजी हमको सिखा दो। लेकिन उससे पहले कौन सी टेक्नोलॉजी थी? पपायरस नामी एक दरख्त जो मिस्र के अंदर था। तो वो कैसा करते थे? गन्ना है, आपने देखा गन्ना, तो गन्ने के अंदर से एक मवाद निकलता और कोने कोने में क्या करता है, वो एक बड़े छुरे या बड़े छुरी के जरिए से मारता है तो बड़ी आसानी के साथ उसका छिलका निकल जाता है। तो वैसा एक वहां पर पौधा जिसके बारीक 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 ऐसे टहनियां निकलते हैं, जिसको ऐसा काटने से अंदर से मवाद निकलता है, जिसको आप कहते हैं गन्ने की तरह, और उसको अगर ऐसा लकड़ी से मारेंगे तो चपटा हो जाता। तो उस चपटे को क्या करते थे? गोंद लेकर चिपकाते थे तो बारीक सूखने के बाद वो बिल्कुल बारीक हो जाता था। तो उसको पट्टियां चिपकाते थे ऊपर से नीचे, फिर हॉरिजॉन्टल, आड़े खड़े इस तरह। तो आखिर में क्या हो जाता था, वो पूरे चिपक कर एक पेपर बन जाता था। लेकिन होता क्या था, इसके अंदर आवाजें बहुत आती थी, टूट जाता था, जाये हो जाता था, और इसी तरीके से इसको गोल करके राउंड करके ले जाना करना बहुत वजन हो जाता था। तो बाद में ताशखंद में क्या हुआ कि ये रुई इस्तेमाल करने लगे, उसके साथ साथ वो मखसूस पत्तों के साथ, मखसूस दरख्तों के टहनियों के साथ वो खास किस्म का ऊन ऐसा इस्तेमाल करने लगे। ऊन रुई तो इस्तेमाल क्या करते थे, जिसकी वजह से क्या कपड़े की तरह सॉफ्ट होने लगा पेपर। तो उस पेपर की खूबसूरत क्या थी, जैसे इससे पहले क्या था, लकड़ी की तरह वो पेपर होता था, कड़क कड़क आवाज आती थी। तो जब उसको लिखते थे, अगर कोई चाहे तो उसके अंदर तब्दीली भी कर सकता है। लेकिन ताशखंद का जो पेपर आया तो उसकी खूबी ये थी कि कपड़े की तरह था, अगर लिखे एक मर्तबा लिख डाले अच्छा लिखा जाएगा, अगर उसको मेटेंगे उसके बाद दोबारा बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते। पता चल जाता कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बदला गया है। तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह इसमें बड़े माहिर थे, वो फौरन कहते थे कि ये किताब करप्टेड है, हदीस की ने मत पढ़ो क्योंकि चेंज हो गई। तो उतने माहिर थे उस जमाने में। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना आने तक, बनो अब्बासिया के जमाने में, जब तक ये पेपर इंडस्ट्री इतनी ज्यादा आम हो गई, कलम इतना आम हो गया कि मुहद्दिसीन को अल्हम्दुलिल्लाह किताबें जमा करना आसान हो गया। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने की कुतुब सित्ता जब लिखी गई तो उस जमाने की खूबसूरत यह है कि हुकूमतें पुख्ता थी। जैसा अचानक हुकूमत अगर मान लीजिए कि लड़ाई झगड़ा अगर हो तो किताब नहीं लिख पाएगा एक आदमी। कर्फ्यू अगर हो, मुआशरे के अंदर दंगे हो और जान का खतरा हो, तो ऐसे वक्त पर लिखना करना मुश्किल हो जाता है। तो जिस वक्त पर कुतुब सित्ता लिखी गई उस वक्त पर बनो अब्बासिया मजबूत हुकूमत कायम थी बनो अब्बासिया की, और ये सारे उलूम और फनून, फन तफसीर, फन हदीस, फन फिक़्ह, बड़े बड़े अकाबिर उलमाए कराम को ये कहते थे कि भाई ये फला आदमी है, ये साइंटिस्ट है, तो उनको जाकर ये लोग क्या करते थे, दीनार देते थे, कहते थे कि भाई घर अपना चला लो, आपका जो टैलेंट है, आपके जो सलाहियतें हैं, वो जो है हमारे लिए लगा दो। तो इस तरीके से बनो अब्बासिया के लोग करते थे। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मजीद मुहद्दिसीन की मैंने बहुत सारे कुर्बानियां क्या है, इसी तरीके से कुतुब सित्ता किन हालात में लिखी गई है, तो ये सारे चीजें मैंने जमा किए। तो उस जमाने के हालात पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं बस आपको एक अभी आने वाले 4 हफ्ते में मैं आपको जब जब हदीस की तारीख, मुहद्दिसीन के कारनामे, उनके कुर्बानियां क्या है, इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। और बहुत सारे पॉइंट्स जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कवर कर लिए हैं। अब आखिरी में जो है आप लोगों को मैं रुखसत होने से पहले ये बताऊंगा कि नेक्स्ट 5 हदीसें आपको याद करना है, होमवर्क आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट
और इसी तरीके से जो भी तारीफात है, मुतवातिर की तारीफ है तो आप लोगों को याद हो गई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुतवातिर की जो तारीफ है, क्या किसी ने किताब भी लिखी है? एक जगह पर मुतवातिर हदीसें क्या किसी ने जमा भी की है? तो उसका जवाब है इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने। लगभग उन्होंने जो है जमा की है मुतवातिर। उस किताब का नाम है अल अज़हार अल मुतनासिरा। नाम याद है तो भी ठीक है, नहीं तो आप इतना कर सकते हैं कि इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने मुतवातिर हदीसों को एक जगह पर जमा कर दिया। तो आहाद का डेफिनेशन क्या है, कोई बता सकते हैं? मुतवातिर और आहाद उर्दू में बताइए। जी शेख, ऐसी हदीस हाँ, जिसमें हर दौर में इतनी बड़ी तादाद में रिवायात किया गया हो कि उनकी गलती बयान करना मुमकिन ही ना हो, तो ये मुतवातिर हदीस है। कसीर तादाद हो, इतनी कसीर हो कि जिन आदतन झूठ पर जमा होना महाल हो, मुमकिन ना हो कि किस बयानी के कोई उनको झुटला ना सके, उनकी किस बयानी पर कोई आदमी जो है मुमकिन ना हो कि इतने बड़े पैमाने पर कोई झूठ पर जमा हो जाए। जी और वो और महसूस तरीके से बात करते हैं वो, जैसे उनका जो मुस्तनद, उनका एतमाद क्या होता है, समिअतु और हद्दस्तु, मैंने सुना, मैंने बयान किया, ऐसी चीजों के जरिए से वो बयान करते हैं। तो अब ये मुतवातिर पर तो क्या किसी ने किताब, क्या हदीसों के मुतवातिर अहादीस को भी किसी ने एक जगह जमा किया है? तो इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह, इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी जमाने में मुताखिरीन यानी बाद के जमाने में इन्होंने काफी काम किया है। आहाद का कोई डेफिनेशन बता सकते हैं? आहाद जी शेख, जी, जो हदीसें मुतवातिरा की शराइत पर पूरी ना उतरती हो, तादाद में तवातिर की हद तक ना पहुंचे, तो उनको आहाद कहते हैं। उसकी 3 किस्में हैं। हदीस मशहूर, हदीस अजीज, हदीस गरीब। हदीस मशहूर क्या है? जिसके रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में 3 हो शेख, या उससे ज्यादा हो, लेकिन लेकिन वो तवातिर की हद तक ना पहुंचे। हाँ, तो मशहूर के लिए भी 2 किताबें, मशहूर हदीसों को भी किसी ने जमा करने की कोशिश की, तो इमाम अजलूनी और इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? इमाम अजलूनी। अजलूनी और इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने। अच्छी बात है। और उसके बाद मरहला है हदीस अजीज, जिसके रावियों की हदीस। तादाद किसी दौर या तबके में 2 हो। हाँ, लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं कि ऐसा अजीज पूरी एक जगह पर किसी ने भी जमा की हो, हमें उसका इल्म नहीं मिलता। हो सकता किसी ने जमा की होगी, लेकिन किसी ने जमा, लेकिन किताबों में मौजूद है, लेकिन एक जगह पर जमा किसी ने की हो, उसका इल्म नहीं मिलता। और एक तीसरी किस्म है हदीस गरीब, जिसके रावियों की तादाद किसी दौर या तबके में 1 हो, और इसे फर्द भी कहते हैं। और उसको फर्क भी कहते हैं। तो गराइब, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के गराइब को जमा किया है बाज मुहद्दिसीन ने। तो इस तरीके से हमें गराइब की भी एक जगह पर मिल जाती है। और आहाद, तो बाज लोग जो है ना ये शुबहा डालते हैं कि मुतवातिर भाई बहुत ज्यादा सनदें कबूल कर लेंगे, लेकिन आहाद हम अकीदे में और अहकामात में कबूल नहीं करेंगे। क्या ये बात सही है? गलत है शेख। गलत है, क्योंकि हुज्जत है, चारों इमामों के पास जो है ये हुज्जत है खबर आहाद। क्योंकि एक आलिम साहब ने तहकीक करते हुए कहा कि चारों इमामों की तरफ में से बाद इमाम, जैसा मिसाल के तौर पे आप देखेंगे मुतआखिरीन दौर में बाद हनफी उलमा की तरफ मंसूब है, और उन्होंने अपने आर्गुमेंट में कहा कि भाई ये आहाद हम कबूल नहीं करेंगे। तो लोग ये लोगों में ये गलत फहमी फैल गई कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी शायद कबूल नहीं करते थे। तो इसलिए क्या कहते हैं, इमामों की तरफ पहले कोई सनद से साबित तो करके बताए। क्या कह रहे हैं? इमामों की तरफ, चारों इमामों की तरफ कोई सही सनद से साबित करके बताए कि चारों इमाम जो है इसको हुज्जत नहीं मानते थे। हाँ, ये बहस होती थी कि भाई मुतवातिर में ज्यादा यकीन है, आहाद में थोड़ा कम यकीन है। ये बहस हुई है एक जमाने में, लेकिन ये बहस इतनी तूल नहीं पकड़ी है कि
आदमी शक करे कि भाई आहाद है तो मैं नहीं लूंगा, तो गुमराही का रास्ता है। क्योंकि अकीदे के आप जन्नत के, हौज़े कौसर के, शफात के, ये जितने हदीसें हैं ना, इनकी सनदें आप जाकर देखिए तो पूरे आहाद है। तो क्या आप इन सबको अकीदा पूरा गड़बड़ कर लेंगे? आप नहीं करेंगे आप। तो इसी तरीके से अहकामात, अगर आप कहेंगे मिसाल तौर मुतवातिर कितने हैं, तो कुल मिला के ढूंढेंगे तो आपको 320। तो अब 320 में आप पूरा दीन समझ पाएंगे? आपको तो 4000 यानी 13 से 15,000 हदीसें चाहिए। सही और हसन मिलाकर कितने चाहिए आपको? 13 से 15,000 हदीसें, तब जाकर आप पूरा दीन समझ पाएंगे। अगर कोई आदमी कहेगा नहीं मैं सिर्फ कुरान मजीद और 320 हदीसों को ही लेकर चलूंगा, तो वो आदमी गुमराही के रास्ते पर जा रहा था। ऐसा किसने कहा तारीख में मालूम? मुअतजिला ने। किसने कहा? मुअतजिला, भटका फिरका था। उन्होंने कहा कि हम आहाद नहीं मानेंगे, लेकिन चारों इमामों में था ऐसा आहाद नहीं मानेंगे, बात के लोगों की गलतफहमी। इसीलिए देखिए कतर में एक वेबसाइट है इस्लाम ऑनलाइन, तो उन्होंने एक बड़ा रिसर्च पेश किया करके उन्होंने कहा मैंने देखा कि पुराने लोगों ने कुछ और कहा, बाद वालों ने कुछ और समझ लिया। गलतफहमी की बुनियाद पर है। ऐसा कहीं नहीं है कि खबरें आहाद होते ही नहीं मानना, ऐसी बात नहीं। बल्कि उन्होंने क्या कहा, खबरें आहाद अगर सही बुखारी सही मुस्लिम में है तो मानेंगे। इस पर सारे उनके बाद के दौर के सारे मसलक के सारे उलमा इस पर मुत्तफिक है। तो इसका मतलब अगर वो खबरें आहाद है, लेकिन अगर वो सही बुखारी सही मुस्लिम में है, तो कहा कि इससे पता चलता है कि एक्सटर्नल तौर पे सपोर्ट मिला। इसको कहते हैं करीना है। क्या कहते हैं? करीना है, बड़ा कवी करीना है, जिसकी वजह से इसको कबूल किया जाएगा। फिर इसी तरह कहते हैं अगर वो उम्मत ने इजमा करके मान लिया, अगरचे के खबर वाहिद लेकिन उम्मत ने इजमा करके मान लिया है, तब भी उसको मानेंगे, ये भी फतवा मिलता है। और अगर पूरी उम्मत ने इसको अमलन कबूल कर लिया है और उसको रद्द नहीं किया है, तो इसको ही मानेंगे। इसका मतलब इकला के फतवे ऐसे कसीर तादाद में मिल रहे हैं कि इतना आसान नहीं है कि हाँ एक जमाने में मुसलमान थे भाई वो आहद को नहीं मानते। तो आजकल क्या हो रहा है, इंटरनेट पर बहुत सारे बयानात है, आप केयरफुल रहना उनसे, क्योंकि वो लोग कायल नहीं असल में आहद को नहीं मानते, जिसकी वजह से वो क्या करते बड़ी आसानी के साथ देखते हैं कि उनके कोई इमाम या आलिम के खिलाफ कोई बात जा रही तो लोग कहते हैं ये आहद है, हम नहीं मानते। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इमाम की और आलिम की बात को छोड़ना है, ना कि हदीस को। अगर आप हदीस को ऐसा बहाना बना कर छोड़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। क्योंकि एक रावी भी क्यों ना हो, अगर वो सिखा है कबूल करेंगे। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु को आपने भेजा, तो आपने क्या कहा, ऐ मुआज जाकर उनको तुम क्या बताओ, ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम। अगर वो मान ले तो उसके बाद सला। तो यानी अकीदा और अहकाम। यहाँ पर एक सहाबी है जो पूरे यमन को कलमा पढ़ाने गए। अगर आप कहेंगे मैं एक की बात नहीं मानता, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनों को भेजना चाहिए था? एक से ज्यादा। तो इससे पता चल रहा है कि ये बहुत बात की गलत फहमी है। कुरान और सही हदीस, इसलिए क्या कहते हैं उलमाए कराम, ये इख्तलाफ शुरू होने से पहले मुअतजिला ने आकर इख्तलाफ डाला आहाद और मुतवातिर में फर्क करके। उससे पहले किसी पे भी इख्तलाफ नहीं था कि वो अकीदे में और अहकाम में कबूल नहीं करेंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर किताब लिखी, 20 तरीके से उन्होंने रद्द किया है, बहुत सारे उन्होंने दलीलें दिए। सबसे आसान दलील अगर आपको समझना है तो मुआज बिन जबल की याद रख लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक को भेजा। अगर एक की बात मकबूल ना होती तो आप कई लोगों को भेजते थे, नहीं नहीं एक ने कम से कम 70 जाओ। तो उम्मीद है कि हमारा आज का दर्स, मैं अगले दर्स में इंशाल्लाह हम सेकेंड हिस्से में जाएंगे। मैंने इरादा किया था कि 2 महीने में 4 हफ्ते आधी बुक पढ़ाएंगे और 4 हफ्ते बाकी के आधी बुक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हम अगले हफ्ते जो है बहुत अहम टॉपिक आने वाला है, जो भी शरीक नहीं हो रहे उनको बोलिए कि लाइव जमा हो जाए। वो क्या है, सही क्या है, हसन क्या है, ज़ईफ क्या है, मौजू क्या है, जो कि असल यानी मुस्तलाहुल हदीस में सबसे अहम सब्जेक्ट है। मैं समझता हूँ कि इतनी बुनियाद हमारी पड़ चुकी है कि अब आगे का इंशाल्लाह आप सबक समझ पाएंगे। अगले आते ही मैं आप लोगों को मुतवातिर और आहाद इन सब के डेफिनेशन सुनकर मैं अपनी बात जब शुरू करूंगा अगले हफ्ते इंशाल्लाह। इस पर कुछ सवाल अगर नहीं है तो हम खत्म करेंगे, हमारा टाइम काफी हो चुका है। माजरत चाहता हूं, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। सर एक सवाल है जी, जो जाना है जा सकते हैं।
कोई बुरी बात नहीं है, जो रहना है रहकर सवाल कर सकते हैं जी। अगर मतन के हवाले से सिर्फ 4000 सही अहादीस है तो इनको याद कर लेने से कोई हदीसों के हाफिज नहीं बन सकते? नहीं क्यों बोले तो आप बोले थे ना 3 लाख हदीसों को याद करेंगे तो हाफिज बोलते हो। हाँ, वो सनद हाफिज का जो इस्तिलाह है वो मुहद्दिसीन ने बनाई है, ये कोई कुरान और हदीस की इस्तिलाह नहीं है, ये मुहद्दिसीन की इस्तिलाह है। तो हर आदमी अपने एक इस्तिलाह बना सकता है। इस्तिलाह बनाने के लिए कोई किसी, हर फील्ड में कोई ना कोई किसी की इस्तिलाह बना लेते हैं। तो मुहद्दिसीन ने इस्तिलाह बना ली के 3 लाख सनदें याद हो, सिर्फ हदीस मतन याद हो तो उसको हाफिज का लक़ब नहीं देते हो। सनदें याद हो, क्योंकि सनद में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। मतन है तो आपको तो मानो सऊदी अरब में जो है गली गली हाफिज हदीस के, सही बुखारी, सही मुस्लिम। आप मदीना में जाएंगे तो हाफिज याहिया, शेख याहिया अल याहिया, अपने बच्चों को आप लोग जो है दुआ कीजिए कि ये शेख क्या कर रहे हैं मदीने में, आज को तुम्हें सित्ता याद करवा रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। और कई तलबा, एक नहीं कई तलबा सैकड़ों तादाद में कुतुब सित्ता याद कर चुके हैं। तो वो क्या किए बोलते, जितने मुकर्रर है, रिपीटेड है, उसको उन्होंने हदफ कर दिया, बाकी के उन्होंने जमा करके याद करवा दिया, कुतुब सित्ता हो गई। अच्छा, जज़ाकल्लाह। काफी टाइम मैंने लिया, माजरत जिनको तकलीफ हो गई। नहीं शेख, बहुत तो फायदा फिर हुआ, दीजिए जज़ाकल्लाह खैर। इजाजत, कोई सवाल अगर नहीं है तो हम खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन। शेख एक ही चीज आखिरी माफ करना शेख, शेख मुतवातिर हदीस में 300 है ना, आप बता रहे थे? ठीक, हाँ जज़ाकल्लाह शेख। क्या बोले, सवाल नहीं समझा। मुतवातिर अहादीस 300 है ना? जी, 320, बाद में कहा 320, यानी तादाद जो है ना बहुत कम जमा की। असल में कितने अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन किसी ने जमा इतने किए। हाँ जज़ाकल्लाह शेख। जी, जज़ाकल्लाह खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।